اللہ نے کہا میں ہنستا ہوں. ہمیں بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہنستا ہے, اللہ مسکراتا ہے, اللہ رب العزت مسکراتا ہے, یہ ہمیں یقین رکھنا ہے. اور اس رب کو ہنسانے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے پڑیں گے. اور اگر اس رب کو ہم ہنسا لیں گے, اگر وہ رب ہماری بات پر مسکرا دیا, تو یاد رکھیے گا کہ دنیا پہ ہماری بندے اور آخرت بھی بندے. اللہ کہے گا کہ تم اسے پہچانو گے کیسے؟ جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو, جس جات کے انتظار میں تم رکے ہوئے ہو, پہچانو گے کیسے؟ تم نے تو دیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہا جائے گا کہ میرا رب جب سامنے آئے گا, اس کی طرف پوری دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی, ہم لوگ اسے پہچان لیں گے. اتنا سننا رہے گا, اللہ رب العزت مسکراتا ہوا چہرہ سامنے لے آئے گا. اب لوگ اس کو دیکھ, اللہ رب العزت کو دیکھ پائیں گے, مسکراتا ہوا چہرہ اللہ کا سامنے آئے گا. اللہ رب العزت کہے گا جس رب کا تم انتظار کر رہے تھے وہ رب تمہارے سامنے آ چکا ہے. رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی میں کوئی انسان ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے, ہر شخص اپنے گرم بستر پر لیٹا ہوا ہے اور خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. ایسے عالم میں ایک آدمی اٹھتا ہے, ٹھنڈی بہت زیادہ ہے یا گرمی بہت زیادہ ہے, برسات ہو رہی ہے, بجلیاں کڑک رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک آدمی اٹھ رہا ہے. وہ اٹھتا ہے, نل کو کھولتا ہے, ٹوٹی کو ہاتھ لگاتا ہے, کھولنے کے بعد وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد مصلی کو بچھا کر اس پر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ایسے شخص کو عرش معلیٰ پر بیٹھ کر دیکھ کر مسکراتا ہے. اس انصاری صحابی نے کہا کہ میری پیاری بیوی, بچے جب کھانا مانگے انہیں لوریاں گا کر, انہیں کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر سلا دینا, اور وہ کھانا گرم کر کے تم دسترخوان پہ رکھو. اور یاد رکھنا جب میں مہمان کو لے کر آ جاؤں, چراغ جو گھر میں جلتا رہے گا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا. وہی معاملہ ہوا, نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کے اندر کھانا تیار ہے, گھر کے اندر میں مہمان نوازی کے لیے تمام تیاریاں کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ میرے مہمان کو. ادھر مہمان لے کر گئے, اللہ رب العزت کی سادات کو دیکھ رہا ہے. مہمان گھر کے اندر گئے, جو بیوی کو کہا گیا تھا مہمان دسترخوان پر بیٹھا ہے, اب یہ ہے کہ کھانا شروع ہی ہونے والا ہے, چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا. اب وہ صحابی رسول, وہ مہمان رسول دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحابی رسول ایسی حرکت کر رہی ہیں گویا گمان ہو رہا ہے کہ وہ اس برتن سے کچھ نہ کچھ کھانا لے رہے ہیں. مہمان کھانا کھا رہا ہے, یہاں تک کہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھایا. رب اس چیز کو دیکھ رہا تھا اور رب مسکرا بھی رہا تھا. اب جبرائیل کو بھی کہہ رہا تھا جبرائیل دیکھو یہ میرا رب ہے جو مہمان رسول کی مہمان نوازی میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس اور پوری کہانی بتاؤ کیا ایسا ایسا معاملہ ہوا. بڑا عجیب منظر تھا. رب نے اس ادا کو دیکھ رب اس ادا کو دیکھ کر مسکرانے لگا, رب اس ادا کو دیکھ کر ہنسنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول کے وہ آئے, اس سے پہلے حضرت جبرائیل پہنچے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پورا ماجرا سنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی سورہ حشر کی, وہ آیت نمبر 9, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ صحابی رسول جب آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تم نے گھر کے اندر کیا ماجرا کیا ہے. وہ صحابی رسول ڈر گئے, کہیں ایسا تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی, نبی کو معلوم تو نہیں ہو گیا. کہا اللہ کے نبی کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اللہ نے بھی بڑا تعجب کیا, اللہ بھی مسکرا رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤق شح نفسه فأولئك هم المفلحون محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں قابل مبارکباد ہیں اور اللہ کی رحمتوں میں ہیں، اور یہاں پر جمع ہو کر ہم نے اپنے دینی بیداری کا بھی ثبوت دیا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی اہل ایمان کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کے اندر دین سیکھنے، نبی کے فرامین کو سننے کا جذبہ ابھی باقی ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ ہماری زندگی جس کا اصل مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے۔ لیکن آج یہ انسان دھیرے دھیرے راہ ہدایت سے بھٹکتے ہوئے ضلالت کی کھائی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ سب کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کیسے خوش ہوگا یہ ہمیں فکر ہے۔ گھر میں ہمارے بھائی ہیں، وہ کیسے خوش ہوں گے یہ ہمیں فکر ہے۔ ہمارے ماں باپ کیسے خوش ہوں گے یہ ہمیں فکر لاحق ہے۔
हमारी बीवी, हमारे बच्चे हमसे कैसे खुश होंगे, ये हमें फिक्र लाहिक है। कैसे हमारे लिए वो हंसेंगे, कैसे वो हमारे बातों पर मुस्कुराएंगे। हम वक्त इसके चक्कर में पड़े रहते हैं और ये कोशिश करते हैं, घर के अंदर जब आते हैं, भाई से, बहन से, माँ से, बीवी से, बच्चों से, बाहर दोस्तों से, पास पड़ोस वालों से मजाक के अंदाज में या कुछ ऐसी बात कह के हम उनकी मुस्कुराहटें लूट लेते हैं। बड़ी फिक्र लाहिक है हमें। लेकिन नई फिक्र है तो हमारा रब मुस्कुराए। हम अमल ऐसा कर ले कि अल्लाह मुस्कुरा दे, अल्लाह हंस दे। हमें दुनिया वालों को हंसाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई वो हंस दिया, बहुत अच्छा लगता है। मेरा छोटा बच्चा वो हंस रहा है मेरी बात पर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बीवी मेरी बात पर हंस रही, बहुत अच्छा है। मैं आज आपके सामने जिस मौजू पर कुछ देर बात करूंगा वो ऐसे आमाल हैं जिनके करने पर अल्लाह हंसता है, मुस्कुराता है। आज अल्लाह को हम नहीं हंसा पाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हंसता है। अब अल्लाह का हंसना कैसा है? जैसे हम हंसते हैं उस तरीके से अल्लाह का हंसना है। जैसे और लोग हंसते हैं उस तरीके से हंसना है। बच्चों की तरह हंसना है, बूढ़ों की तरह हंसना है, जवान की तरह हंसना है, और इसी तरीके से औरतों की तरह, किस तरीके से हमें नहीं पता। अल्लाह कुरान में कहता है लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसे कोई भी चीज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पेशाए निशान कोई चीज नहीं। अल्लाह की जात बिल्कुल मुबर्रा है हर चीज से। अल्लाह ने कहा मैं हंसता हूं। हमें भी यकीन रखना है कि अल्लाह हंसता है, अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराता है, ये हमें यकीन रखना है। और उस रब को हंसाने के लिए हमें कुछ आमाल करने पड़ेंगे। और अगर उस रब को हम हंसा लेंगे, अगर वो रब हमारी बात पर मुस्कुरा दिया, तो याद रखिएगा कि दुनिया भी हमारी बन गई और आखिरत भी बन गई। लेकिन इस रब को हंसाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया के तमाम काम कर ले, दुनिया की तमाम चीजों में हम खुशी हासिल कर ले, दुनिया की तमाम मुस्कुराहटें हासिल कर ले, दुनिया की तमाम कहकहे हासिल कर ले, लेकिन रब के कहकहे हम नहीं हासिल कर पाएंगे। रब की मुस्कुराहटें अभी हम नहीं ले पाए, रब की हंसी अभी हमें नहीं मिली है। आइए वो आमाल सुनते हैं। अच्छा ये भी सुन लीजिए, रब के हंसने की भी बड़ी फजीलत है। अगर अल्लाह हंस दे हमारे आमाल पर, हम दुनिया के अंदर जो करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस अमल पर हंस दे तो बड़ी फजीलत। आइए हदीस सुनते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, 22,476 नंबर की हदीस है। हजरत नईम बिन हम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदा ज़हिका रब्बुका इला अब्दिन फिद दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर बंदे के किसी अमल की वजह से दुनिया में अगर वो अमल कर रहा है, अल्लाह मुस्कुरा दे, अल्लाह हंस दे, फला हिसाब लहू, तो फिर उसका हिसाब किताब नहीं होना। ये फजीलत है। किस बात की? अल्लाह किसी अमल की वजह से मुस्कुरा दे, अल्लाह किसी अमल की वजह से हंस दे, तो अल्लाह के नबी ने कहा फला हिसाब लो, फिर उसके बाद कोई हिसाब नहीं है उसके ऊपर। अब कोशिश कीजिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हंसना गोया हमारे लिए एक नेमत उज़्मा, बहुत बड़ी नेमत है। आइए वो अमाल सुनते हैं जिससे अल्लाह मुस्कुराता है। नंबर 1, अकीदे तौहीद पर कायम हो जाना, अकीदे तौहीद को पूरी तरीके से अपना लेना। हर मामले में अकीदे को अपने साथ रखे। कभी भी अकीदे तौहीद से हम सौदा न करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन हश्र के मैदान में हमारे इस अमल की वजह से मुस्कुराएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अकीदे तौहीद में पुख्तगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने लेकर आएगा। लेकिन आज अकीदे तौहीद पर हम कायम हैं? आज क्या तौहीद हमारा पुख्ता है? आज हर एक मामले में देख लीजिए, हर एक जगह पर हम तौहीद से सौदा करते हैं। जहां डर हो, जहां भय पैदा हो,
जहां हमें नुकसान का खतरा हो, हम कहीं न कहीं किसी न किसी के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रब के सामने न झुककर हम दूसरों से डर जाते हैं, दूसरों से हम दहशत महसूस करने लगते हैं, और डर की हालत ये होती है फिर हम क्या क्या नहीं करते हैं, उस रब का दामन छोड़ देते हैं जिसने माँ के पेट में 9 महीनों तक हमारा हर लम्हे हर सेकंड अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्याल रखा। फिर माँ के पेट से निकलने के बाद मुसलसल 2 सालों तक हमारे माँ के सीने में हमारे लिए रिज्क को पैदा करता रहा, उसको महफूज रखता रहा। फिर उसके बाद दुनिया की तमाम नेकी, दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी, लेकिन उस रब का दर हम छोड़ते हैं, और ये दर छोड़ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम हो चुका है। कहाँ छूटता है? घर के अंदर अगर हमारे कोई सामान गिर जाए तो उसके बाद हम दूसरे दिन कोशिश करते हैं किसी को बुलाकर दिखवा ले कि हमारे घर में कुछ हुआ तो नहीं है। हम मशीन चला रहे हो, अचानक कुछ मशीन में हो जाए, हमारे दिमाग में पहले यह आकर लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया। यहीं पर तौहीद से सौदा करते हैं। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। जब अल्लाह चाहेगा किसी चीज को देने के लिए तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उस चीज को रोक नहीं सकती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज को रोक ले तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उस चीज को हम तक नहीं पहुंचा सकती। हमारे बच्चे रोने लगे, रात को अगर डर जाए, अगर वो नींद की हालत में घबरा कर उठ जाए, तो फिर उसके बाद कहे हमारी माए बहने तकिया के नीचे लोहा रखकर सोने शुरू कर देते। यहीं पर हम तौहीद का दामन छोड़ देते। घरों के दीवारों पर हम तख्तियां लटकवा देते हैं, यहीं पर हम तौहीद से सौदा करते हैं। हम घर के चौखट पर हम घोड़े के नाल लगवा देते हैं, यहीं पर हाँ तौहीद का दामन हमसे छूट जाता है, रब से रिश्ता हमारा टूट जाता है। आइए हदीस देखते हैं। अकीदे तौहीद पर अगर कायम है, अगर अकीदे तौहीद तो हमारे अंदर है और उस पर पुख्तगी के साथ हम मरते दम तक उसी पर रहे, तो कयामत के दिन उसका क्या फायदा होगा। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। मुस्नद अहमद में 19,654 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत चटियल मैदान में हर कौम के हर अफराद को जमा करेगा, यानी हर उम्मती वहां मौजूद होंगे। ईसा, मूसा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और जितने भी नबी हैं तमाम के उम्मती उस चटियल मैदान में मौजूद होंगे। अल्लाह जब चाहेगा कि मैं इन बंदों के सामने आऊं, मैं अपने चेहरे का दीदार कराऊं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले उन लोगों का चेहरा जाहिर करेगा जिसकी लोग इबादत करते, जिसके डर से लोग डरते थे, जिसकी नाराजगी से लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए, जहां पर हम जाकर छुपते थे, जहां पर हम पीठ दिखाना गवारा नहीं करते थे, जहां पर जाकर हम उनको खुशी गमी और इसी तरीके से हर चीज का मालिक समझ लेते थे, जिनको गौस और दस्तगीर हमने समझ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहेगा कि मैं उनके सामने आऊं, यानी मैं लोगों के सामने अपने चेहरे को जाहिर करूं, अल्लाह उनके चेहरे को जाहिर कर देगा। लोग जिसकी इबादत करते थे उनको देखेंगे, फौरन पहचान लेंगे, अब उनके पीछे पीछे वो चलने लगेंगे, यहां तक कि जो जिसकी इबादत कर रहा है वो उसके पीछे पीछे जाता रहेगा, यहां तक कि जिसकी इबादत की जाती थी वो उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देगा, जहन्नम के गड्ढे में गिर गए। लेकिन अभी एक जमात बाकी है, वो लोग अभी इंतजार में रुके हुए किसी के साथ नहीं गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मा यातीना रब्बुना अज़्ज़ा व जल व नहनु अला मकानिन रफ़ीइन, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर आएगा और हमारी अल्लाह के नबी ने कहा मेरी हालत ये होगी कि मैं एक बुलंद मकाम पर हूंगा। फयकूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा मन अंतुम, तुम लोग कौन हैं, तुम लोग यहाँ पर रुके हुए क्यों हो? मैंने कुछ लोगों के माबूद के चेहरे सामने कर दिए थे, वो लोग उनके पीछे हो लिए, तुम लोग किसके इंतजार में हो? फनक़ूलु नहनु मुस्लिमून, अल्लाह के नबी ने कहा कि कहा जाएगा कि हम लोग इस्लाम वाले हैं, हम लोग मोमिन हैं, हम लोग मुस्लिम हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा फयक़ूलु मा तंतज़िरून, तुम्हें किस बात का इंतजार है? अल्लाह पूछेगा
तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फयकूलूना नंतज़िरु, वो लोग कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम इंतजार कर रहे हैं, रब्बना अज़्ज़ वजल, अपने रब का इंतजार कर रहे हैं जो हमारा हर चीज का मालिक था, जो हमें रिस्क देता था, हमारे खुशी गमी का जो मालिक था, उस रब के इंतजार में हम हैं। ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयकूलू वहल तारिफूनहु, अल्लाह कहेगा कि तुम उसे पहचानोगे कैसे? जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस जात के इंतजार में तुम रुके हुए हो, पहचानोगे कैसे? तुमने तो देखा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहा जाएगा कि मेरा रब जब सामने आएगा उसकी तरफ पूरी दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं होगी, हम लोग उसे पहचान लेंगे, इतना सुनना रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने ले आएगा, अब लोग उसको देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख पाएंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह का सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा जिस रब का तुम इंतजार कर रहे थे वो रब तुम्हारे सामने आ चुका है। और ये दीदार नसीब कैसे हुआ? ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह को हम देखेंगे क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत का देखेंगे क्यों? क्योंकि हमने तौहीद का पास रखा, हम तो दुनिया के अंदर तौहीद पर कायम थे। यही वजह है कि हम मैदान महशर में भी अपने रब का इंतजार करेंगे कि जब रब बारी ताला आएगा तब हम उसके साथ चल पड़ेंगे। ये है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा लोगों खुश हो जाओ, उम्मत मोहम्मदिया के लोग होंगे और भी अहले ईमान, दीगर उम्मतियों के भी अहले ईमान होंगे। अल्लाह कहेगा खुश हो जाओ, तुम्हारे बदले अल्लाह, अब मैंने जहन्नम के अंदर यहूद और नसारा को डाल दिया, अब तुम लोग जन्नत में। पता क्या लगा? तौहीद पर कायम रहने का एक फायदा ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुस्कुराता हुआ चेहरा मैदान महशर में देखेंगे, और उसके बाद दूसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान और अहले तौहीद के बदले में यहूद और नसारा को जहन्नम में डाल देगा, जिनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी पक्का ईमान और इत्तेकाद होगा सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बदले यहूद और नसारा को जहन्नम में डाल देगा। ये पहली वजह, ये पहला अमल है जिसकी वजह से अल्लाह मुस्कुराता है। नंबर 2, रात की तारीकी हो, पूरी दुनिया ख्वाब गफलत में सो रही है। रात की तारीकी में ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। रात की तारीकी में बिल्कुल अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई इंसान चलने वाला नहीं है, कोई इंसान इधर उधर नहीं है। रात की ठिठुरती ठंडी में कोई इंसान इधर उधर नहीं जा रहा है, हर शख्स अपने गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ है और ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। ऐसे आलम में एक आदमी उठता है, ठंडी बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है, बरसात हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी उठ रहा है। वो उठता है, नल को खोलता है, टोटी को हाथ लगाता है, खोलने के बाद वुजू करता है, वुजू करने के बाद मुसल्ले को बिछाकर उस पर खड़ा हो जाता है। अल्लाह ऐसे शख्स को अर्श मुअल्ला पर बैठकर देखकर मुस्कुराता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को देखकर अर्श मुअल्ला पर बैठकर मुस्कुराता है। अब सोचिए, ये नफिल नमाजें, रात की तहज्जुद की नमाजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। और आज हमारी हालत क्या है? हम वो तहज्जुद से दूर की बात है, फराइज हम नहीं अदा कर पाते हैं। हम जुमा वाले सिर्फ मुसलमान हैं, हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने मस्जिदों के अंदर आए, अपने मस्जिदों की निगरानी करें, अपने मस्जिदों को देखें। आज देख लीजिए, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमारे मोहल्ले के अंदर एक दीनी जलसा रखा गया, एक दीनी प्रोग्राम रखा गया। मैं इस मोहल्ले के तमाम अफराद से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर ईमानी इतना मफकूद हो चुका है कि आपको मस्जिद की तरफ चल कर आने के लिए इस ईमान ने मजबूर नहीं किया कि चलो मस्जिद की तरफ चलकर? तुम्हारा कैसा ईमान है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन आते हो, जुमा के दिन आने के बाद वो भी तुम कुछ चंद मिनट या चंद घड़ी रहकर नमाजें पढ़ते हो, चले जाते हो, अपने ईमान की खैर मनाओ। रातों को उठने वाले, रातों को जागने वाले, रातों को गिरियावजारी करने वाले, अल्लाह के सामने शर्मिंदगी के आंसू बहाने वाले, अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने वाले, अपनी हाजात मांगने वाले, अल्लाह से माफी तलब करने वाले, रिज़्क़ मांगने वाले, और जब ये खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं, अल्लाह इनके हर हरकत को देखकर मुस्कुराता है। हदीस सुनते हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस के रावी हैं, सही तरगीब और तरहीब में हदीस नंबर 629 नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाह व यदहकु इलैहिम व यस्तबशिरुहुम व यस्तबशिरु बिही। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है।
तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको अल्लाह देखकर मुस्कुराता है, हंसता है, और उनके लिए बशारत भी है। कौन? अल्लाह के नबी ने कहा तीन आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको देखकर मुस्कुराता है, और जिनके लिए बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें एक आदमी वो है, वल्लज़ी लहू इमरातुन हसनतुन व फिराशुन लय्यिनुन हसनुन फयकूनु मिनल लैल। एक आदमी वो है जिसके पास नर्म गरम बिस्तर है, जिसके पास बेहतरीन बिस्तर है, जिसके बगल में खूबसूरत औरत है, लेकिन उसके बावजूद उसका मामला क्या है कि वो रात की तारीकी में बिस्तर को छोड़ रहा है, बीवी को छोड़ रहा है, गर्मी है, ठंडी है, तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, और रात की तारीकी में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इबादत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श से देखकर ऐसे बंदे को मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। दुनिया के अंदर ये अमल अगर हम रात में कर रहे हैं, अल्लाह मुस्कुरा दे। नबी को हदीस याद रखिएगा, फला हिसाब लहू, उसका फिर कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी अल्लाह खुश हो गया, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। दुनिया के अंदर उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से अल्लाह ने हंस दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे की इस हरकत को देखता है, फिर फरिश्तों को मुखातब होकर कहता है कि जरा ये बताओ, ये बंदा गर्म बिस्तर पर सोया हुआ था, मैंने अपने नेमत से इसको गर्म बिस्तर दिए हैं, मैंने बेहतरीन बिस्तर दिए हुए हैं, मैंने इस पर तमाम नेमतें तमाम कर दी है, इसके लिए खूबसूरत बीवी भी है, बगल में वो सोई भी है, लेकिन किस बात ने मजबूर किया? ये रात की छुट्टी सर्दी है, ये गर्मी का जमाना है, ये रात में बरसात का मौसम है, ये बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन उसके बावजूद किस बात ने इसको मजबूर किया है कि ये खड़ा हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने क्रियावजारी कर रहा है, अल्लाह के सामने नादिम हो रहा है, अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तेरी अजाब से डरता है, अल्लाह ये तेरी जहन्नम के दहाड़ से डरता है, अल्लाह ये तेरे जहन्नम के चीखों पुकार से डरता है, अल्लाह ये तेरी अजाब से डरा हुआ है, अल्लाह तेरी आग से डरा हुआ है, अल्लाह ये बड़ा लालची है, ये जन्नत चाहता है, जन्नत के महलात चाहता है, जन्नत की नेमतें चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब इसका ये मामला है, अगर इस बात से डर रहा है कि मेरा अजाब इसको पकड़ न ले, इस बात से डर रहा है कि मैं कहीं जहन्नम में दाखिल न कर दूं, इस बात से डर रहा है कि कहीं इसके ऊपर मेरी आग न बरसाई जाए, यानी मेरी आग से जलाया ना जाए, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैं इसे अमान देता हूं। अल्लाह मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसे अमान देता हूं, मैं इसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा, मैं इसे जन्नत की नेमतें दूंगा। ये आमाल हैं जिनसे अल्लाह मुस्कुराएगा और जन्नत भी मिल जाएगी। मेरे भाइयों कर लीजिए, आज हो पाता नहीं हो पा रहा है उसे। जरा और आगे बढ़िए। एक बंदा जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, कुर्बानी का जज्बा इसार हो, उसके अंदर किसी की कोई जरूरत हो उसे पूरा करेगा, घर से उसे उस चीज की बड़ी जरूरत है, यानी मुझे 10 रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं अभी गुजर रहा हूं वो 10 रुपए लेकर, लेकिन अभी कोई सामने से आया बड़ा जरूरतमंद, मेरे पड़ोस का है, मेरे मोहल्ले का है, मेरे जानने वाला है, कहीं दूर का है, वो आदमी कह रहा है मुझे इस बात की जरूरत है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इस 10 रुपए से मैं अपने घर की जरूरत पूरी कर सकता हूँ, अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो देख रहा है कि एक आदमी मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, वो पैसा उसे उठा कर दे दे। ये जज्बा अगर किसी के अंदर हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को देखकर मुस्कुराता है। ये जज्बा आज हमारे अंदर है। आज कुर्बानी का मौका करीब आ रहा है, ये भी एक कुर्बानी, एक जज्बा है, ये एक इशार है, एक इबादत है, लेकिन हम पहले ही से सोच रहे हैं मुझे साहब है ही नहीं कुछ, साड़ी की मार्केट एकदम खराब है, कहां से कुर्बानी होगी? नहीं, आप आखिरी दम तक कहते रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल रही, अल्लाह की रहमत रही तो मैं कुर्बानी करूंगा। जज्बा रखिए अपने अंदर इस चीज को मरने मत दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। और हम लोग ये भी मैंने लोगों को भी देखा है, बहुत सारे लोगों को, नहीं मैं ये पैसा इसलिए रखा हुआ मेरा फला काम हो जाए मैं कुर्बानी नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाइयों जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए, इशार कुर्बानी पैदा कीजिए। आप उस पैसे को, ठीक है आपने उस चीज को रखा है, लेकिन अभी इबादत का वक्त करीब आ रहा है, आप एक बहुत
तगड़ा बकरा मत लेकर आइए, एक मामूली सा ऐसा लेकर आइए जो हदीस में जो शरायत है उस तरीके का एक छोटा सा बकरा लाकर उसकी कुर्बानी कर दीजिए। अल्लाह इस अदा से मुस्कुरा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पैसे के अंदर इंशाअल्लाह जरूर बरकत देगा। आइए एक वाकया देखते हैं, अल्लाह किस कदर हंसता है अगर किसी के अंदर ये जज्बा हो कि नहीं मेरा काम बने ना बने लेकिन फला आदमी का काम बनना चाहिए। आज इसका उल्टा हमारे यहाँ मामला चलता है, हमारा काम नहीं बना तो उसका भी नहीं बनना चाहिए, मेरा बिगड़ा है तो उसका भी बिगड़ना चाहिए, ये जज्बा हमारे अंदर है। लेकिन ये जज्बा एक सहाबी के अंदर बिल्कुल बराक से था, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन अल्लाह के नबी का मेहमान भूखा न रह नहीं पाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बुखारी में 3798 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए, रात का वक्त है, रात के खाने का इंतजाम करना है। अल्लाह के नबी ने घर के अंदर अज़वाज मुताहिरात के पास एक सहाबी रसूल को भेजा, कहा जाओ पता करो घर के अंदर खाने की क्या चीजें हैं, घर के अंदर एक मेहमान के लिए क्या इंतजाम है। गए पता किए, पता हुआ कि कुछ घर के अंदर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर इतने खाने मौजूद नहीं है कि आज रात का भी इंतजाम हो सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि मामला ऐसा है कि घर के अंदर खाने का इंतजाम नहीं है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कौन है जो इस मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस अंसारी मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ घर के अंदर कह कर आओ, घर के अंदर देख कर आओ कि इंतजाम क्या है। वो सहाबी रसूल जा रहे हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं घर के अंदर इंतजाम क्या है, खाने की चीजें क्या है। नबी का एक मेहमान आया हुआ है, उसके लिए अल्लाह के नबी से मैंने वादा कर लिया है कि नबी मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा। बीवी कहती है क्या मेरे सरताज घर के अंदर इतना खाना है कि बच्चे खा सकते, हम नहीं खा सकते हैं। अब शौहर ने जब ये सुना कि सिर्फ बच्चों के मिकदार के बराबर खाना है और उसके बाद कोई और खाना नहीं है, उस अंसारी सहाबी ने कहा क्या मेरी प्यारी बीवी बच्चे जब खाना मांगे उन्हें लोरियां गाकर उन्हें किसी तरीके से बहला फुसला कर सुला देना और वो खाना गर्म करके तुम दस्तरखान पे रखो। और याद रखना जब मैं मेहमान को लेकर आ जाऊं चिराग जो घर में जलता रहेगा उसको ठीक करने के बहाने उसे बुझा देना। वही मामला हुआ, नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर खाना तैयार है, घर के अंदर मैं मेहमान नवाजी के लिए तमाम तैयारियां करके आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ले जाओ मेरे मेहमान को। इधर मेहमान लेकर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सादा को देख रहा है। मेहमान घर के अंदर गए, जो बीवी को कहा गया था मेहमान दस्तरखान पर बैठा है, अब यह है कि खाना शुरू ही होने वाला है, चिराग सही करने के बहाने बुझा दिया गया। अब वो सहाबी रसूल वो मेहमान रसूल दोनों बैठे हुए हैं और सहाबी रसूल ऐसी हरकत कर रही हैं गोया गुमान हो रहा है कि वो उस बर्तन से कुछ न कुछ खाना ले रहे हैं। मेहमान खाना खा रहा है, यहाँ तक कि मेहमान पेट भरकर खाना खाया। रब इस चीज को देख रहा था और रब मुस्कुरा भी रहा था। अब जिब्राइल को भी कह रहा था जिब्राइल देखो ये मेरा रब है जो मेहमान रसूल की मेहमान नवाजी में लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है जिब्राइल जाओ मेरे नबी के पास और पूरी कहानी बताओ क्या ऐसा ऐसा मामला हुआ। बड़ा अजीब मंजर था। रब ने इस अदा को देखकर रब इस अदा को देखकर मुस्कुराने लगा, रब इस अदा को देखकर हंसने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी रसूल के वो आए, इससे पहले हजरत जिब्राइल पहुंचे हुए हैं और उसके बाद पूरा माजरा सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत नाज़िल हुई सूरह हश्र की, वो आयत नंबर 9 वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में वो सहाबी रसूल जब आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज तुमने घर के अंदर क्या माजरा किया है। वो सहाबी रसूल डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलती हो गई, नबी को मालूम तो नहीं हो गया। कहा अल्लाह के नबी क्या हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने एक ऐसा काम किया है कि अल्लाह ने भी बड़ा ताज्जुब किया, अल्लाह भी मुस्कुरा रहा था। और इसी तरीके से अल्लाह ने जिब्राइल को भी कहा देखो ये मेरा बंदा है, मैं इसकी इस अदा से खुश हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस अदा पर एक आयत नाज़िल की है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उन्हें कुछ चीजों की जरूरत होती है लेकिन वो अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं। भूखे वो खुद थे, उनको खाने की जरूरत थी, उनके बच्चों को भी खाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने किया क्या उसको मेहमान को खिलाया, खुद भूखे रह गए, बच्चे भी भूखे रह गए। शायर कहता है खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये अमल आज पैदा कीजिए।
आज हमारे यहाँ मेहमान आए उससे पहले हमें ये हो जाता है कि मेहमान आने वाले हैं, घर के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें हमारे दिल में पैदा हो जाती है। हमें सोचना चाहिए कि रब की तरफ से अगर कोई मेहमान आ रहा है तो रब की तरफ से रहमतें भी आने वाली है, रब की तरफ से रहमतें भी आने वाली है। हमारी बहनें आए, हमारी बेटियां आए, हमारे रिश्तेदार आए, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन आज मामला इसके बिल्कुल बरक्स होता जा रहा है। हमारे अंदर ईसार का जज्बा नहीं, कुर्बानी का जज्बा नहीं, हमें दूसरों के ऊपर कुछ खर्च करने का जज्बा नहीं है। इसको पैदा कर लीजिए, अल्लाह मुस्कुराएगा। इसी तरीके से नंबर 4, सदका करने वालों के हरकत को भी देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। सदका, आदमी मस्जिद के अंदर आया, अभी मस्जिद के अंदर जुमा के दिन ऐलान हो गया कि भाई मस्जिद के अंदर ये रंग पेंट का काम होना है, वजूखाना का काम होना है, या फिर ऊपर बनने का काम हो रहा है। आपने अपने जेब में हाथ डाला और निकाल कर रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अदा देख लिया। जेब के अंदर हाथ डालने की अदा को अल्लाह ने देखा, जब आपने रखा उस अदा को भी अल्लाह ने देखा। अल्लाह मुस्कुरा देता है, अल्लाह इस चीज पर मुस्कुरा देता है। ये काम तो बड़ा आसान मालूम हुआ। तौहीद में हम खोटे हैं, रात की नमाज में भी हम खोटे हैं, इशार और जज्बा में भी खोटे हैं, लेकिन सदका वाला ये काम तो बड़ा आसान मालूम हो रहा है। इस तरीके से हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। सदका याद रखिएगा, बुरी मौत से बचाते हैं, बलाओं को टाल देते हैं, दिल को नरम करते। एक हदीस सुनिए, मुस्नद अल फिरदौस जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 41। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल लयज़हकु इला रजुली इज़ा मद्दा यदहु बिस्सदका। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी को देखकर हंसता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह उस आदमी को देखकर मुस्कुराता है, हंसता है, जो अपने हाथों को सदका के लिए फैलाता है, यानी जेब में डाले फिर उसके बाद निकाल कर हाथ को फैलाए। इदा मद्दा यदहु बिस्सदका, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब कोई आदमी अपने हाथ को सदके के लिए बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, इस अदा को देखकर मुस्कुराता है। वमन दहिकल्लाहु इलैहि गफर लहू, और अल्लाह जिसको देखकर मुस्कुरा दे उसके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। मेरे भाइयों, सदका करिए, आप सदका करने का जज्बा पैदा कीजिए। आप सदका करिए, अल्लाह मुस्कुराएगा। लेकिन आज हमारे यहाँ सदका नहीं होता है। हम ये समझते सदका वो करे जो बहुत अमीर हो, जिनको अल्लाह ने दे रखी है दौलत, जिनके यहाँ दौलत का अंबार हो। मेरे भाइयों, मैं एक आसान नुस्खा बताता हूँ अपने रब की हंसी लूटने का, अपने रब को हंसने का मौका देने का मैं एक आसान नुस्खा बताता हूं। इस तरीके से आप अपने रब को, जब आप अपने हाथ को फैलाएंगे सदके के लिए, आपका रब जरूर मुस्कुरा देगा। और फिर याद रखिएगा कि जब आपका रब मुस्कुरा देगा तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर। वो नुस्खा क्या है? आप लुम चलाते हैं, आपका हिसाब हफ्ते में हो रहा है, हफ्ते में हो रहा है, आपने 1000 का काम किया। आप जब जुमा के दिन वो 1000 रुपए पाए, मैं नहीं कह रहा हूं आप 100 रुपए उसमें से खर्चा कीजिएगा, आप धीरे से वो जेब से 10 रुपए निकालिए। अब 10 रुपए निकालने के बाद क्या है, उसे मस्जिद के किसी उसमें डाल दीजिए, यानी मस्जिद की जरूरत में डाल दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी बेवा को दे दीजिए, किसी यतीम को दे दीजिए। इस तरीके से आप करिए, ये बड़ा आसान नुस्खा है, आपका रब मुस्कुरा देगा, आपका रब मुस्कुरा। आप अगर बड़े सेठ साहब हैं तो आप ऐसा कीजिए, एक आसान नुस्खा ये है कि आपके यहाँ 10 मशीनें हैं और हर मशीन में हफ्ता पर 10 साड़ियां चल रही है, यानी क्या है, 10 मशीनों की साड़ी पूरे हफ्ते की मिला के 100 साड़ियां होंगी। आप क्या करिए, हर साड़ी का 1 रुपए अलग कीजिए और ये नियत करिए कि मैं हर साड़ी से 1 रुपए निकालूंगा, यानी उस साड़ी की कीमत 1000 रुपए है, आप 999 रुपया अपने पास रखिएगा, हर साड़ी से 1 रुपए निकालिएगा, वो पूरे 100 रुपए हुए। उस 100 रुपए को आप किसी गरीब को दे दीजिएगा, किसी मस्जिद में दे दीजिएगा, किसी बेवा को दे दीजिएगा। इस तरीके से आप कर लीजिए। या इसी तरीके से आपको अल्लाह ने और बहुत नवाजा है, आप बड़े ही धन्ना सेठ हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप महीने महीने में मदरसों का चक्कर लगा लीजिए, वहां जाकर पूछिए कि कोई यतीम बच्चा है जिसके फीस का मामला हो रहा है, लाओ मैं ये फीस उसको जमा कर देता हूँ। ये अदा आप कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुरा देगा। है कि नहीं बड़ा आसान सदका करना? कीजिए इस चीज को। तारीख में आज एक आदमी का नाम बड़ा लिया जाता है,
अलबैक नाम का एक रेस्टोरेंट आपने सुना है? अलबैक नाम का, उसके जो सबसे पहले जो मालिक थे वो सऊदी अरब की कंपनी है। सबसे पहले जो मालिक थे उन्होंने क्या किया था, आज अलबैक का मामला ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ब्रांच है, पूरी दुनिया के अंदर। और उसके मालिक ने क्या किया था कि उन्होंने कहा, उन्होंने ये नियत की थी कि मैं इस चीज को शुरू कर रहा हूं और हर 10 रियाल पर मैं 1 रियाल सदका करूंगा। दिन भर काम करते, दिन भर काम करने के बाद रात को जब दुकान बंद करना होता वो रियालों को गिनते थे, जितने 10 रियाल होते थे उसमें में से 1 रियाल वो निकालते जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, यकायक उनका इंतकाल हो गया। बड़ी बड़ी चीजें चलने लगी थी, बड़े बड़े यतीम खाने चलने थे, बड़े बड़े मदरसे चलने लगे थे, उनके अल्लाह ने इतनी बरकत दी थी। उसके बाद उनके इंतकाल पर वो तमाम लोग जमा हो गए। उनके बच्चों ने कहा क्या मामला हुआ, उनके बच्चों को बताया गया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, हम लोगों को बड़े फिक्र हो गया, हमारा ये काम कैसे होगा। बच्चों ने कहा कि ऐसा क्या मेरे अब्बा करते थे कि जो आप लोगों को इतना फिक्र हो गया कि उनकी परवरिश कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके अब्बा करते ये थे, हर 10 रियाल पर 1 रियाल वो सदका किया करते थे। उन बच्चों ने सुना कि मेरे पूरी जिंदगी अब्बा ने ऐसा किया, हमें भनक तक नहीं लगी। इतने बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, इतने यतीमों को पाल रहे, अल्लाह पाल रहे थे मेरे बाप। उन्होंने नियत किया कि अब हर 10 रियाल पर 1 रियाल नहीं बल्कि 2 रियाल हम सदका करेंगे। अल्लाह ने उनके कारोबार को इतना बढ़ा दिया है, पूरी दुनिया के अंदर उनके ब्रांचेस हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा आज साड़ी का मामला बड़ा ही खराब हो चुका है। हमारा आप रोना रो रहे हैं, हर साड़ी पर 1 रुपए के आप सदके की नियत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कारोबार में बरकत जरूर अता फरमाएगा। वक्त भी हो चुका है, इशा का वक्त। मैं एक चीज और बयान कर दूं, 1-2 चीज और बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुख्तसर तौर पर तौबा करने वालों की हरकत को भी देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। अगर आदमी तौबा करे, कोई गुनाह हो गया है, गुनाह होने के बाद उस पर नादिम और शर्मिंदा हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी खुशी होती है। बुखारी की एक हदीस है 2747 नंबर की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह की तरफ तौबा की नीयत से आता है, तौबा करता है, गिरिया वजारी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे खुश होता है जैसे एक आदमी प्याब हो गया, वादी में चला गया, एक जंगल में चला गया हो और ऊंट उसके साथ है, उस पर तमाम सामान लदे हुए हैं। फिर क्या है, वो उस ऊंट को बांधता है या ऐसे ही छोड़ देता है और खुद सो जाता है। उठता है, जब आंख खुलती है तो देखता है तो ऊंट उसके पास नहीं है। वो इधर उधर जाकर तलाश करता है, वो ऊंट मिला नहीं। अब वो सोचा कि तमाम चीजें तो उस पर थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत हो जाए। अब वो फिर वहीं आकर सो जाता है। फिर दोबारा जब आंख खुलती है तो फिर उसके बाद क्या मामला होता है, देखता है कि वो ऊंट सामने है। वो मारे खुशी में कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। उसे कहना ये चाहिए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। लेकिन उसने कहा अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। उसको इतनी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इससे ज्यादा खुशी होती है, अल्लाह इससे ज्यादा मुस्कुराता है, इससे ज्यादा हंसता है जब बंदा तौबा के लिए अल्लाह के दरबार में आता है। एक आखिरी अमल वो है कि एक आखिरी आदमी वो है जो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी हरकत को देखकर मुस्कुराएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान है, वो उसको जहन्नम से निकलवाएगा, उसके ऊपर आबे कौसर डाला जाएगा। वो आदमी ऐसे खिल उठेगा जैसे कूड़े करकट में बीज से नए पौधे निकलने लगते हैं। वो आदमी एक पेड़ के नीचे आएगा, देखिएगा कि दूर बहुत बेहतरीन पेड़ दिखाई दे रहा है, उसका साया इससे ज्यादा अच्छा है। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह से गुजारिश करेगा अल्लाह मुझे उस पेड़ के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा कि अब इसके बाद कुछ मांगोगे तो नहीं, मैं तुम उस पेड़ के पास पहुंचा दूं, वहां के साया तुम पा जाओ। वो कहेगा अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगूंगा। एक पेड़ के पास जाएगा, फिर दूसरा पेड़ दिखाई दिया, फिर वही सारी बातें होगी। अल्लाह दूसरे पेड़ के पास पहुंचा देगा, फिर तीसरे पेड़ को दिखाई दे देगा, फिर उस पेड़ के पास जाएगा। अल्लाह कहेगा अब कुछ मत मांगना। लेकिन अब जन्नत के करीब पहुंच गया, जन्नत का दरवाजा दिखाई दे रहा है, जन्नत से शोर शराबे सुनाई दे रहे हैं। वो कहेगा अल्लाह इस दरवाजे के अंदर मैं झांकना चाहता हूं। अल्लाह कहेगा कि मैंने कहा था इसके बाद कुछ मत मांगना, लेकिन तुम बड़े लालची हो, अल्लाह बस एक बार दिखा दे, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, जा मैं तुमको दाखिल कर देता हूं। जैसे ही जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो देखेगा कि इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, यानी अब कोई जगह ही खाली नहीं है। वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेगा अल्लाह इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह कहेगा कि तुमने इसमें सिर्फ झांकने के लिए कहा था, जगह नहीं मांगी थी। अल्लाह मुस्कुराएगा, कहेगा कि तुम
बड़े रईस हो, बड़े लालची हो, और तुम्हारे अंदर आज भी वो चीजें हैं कि तुम थोड़ी सी चीज पर मुतमईन नहीं होते हो। अल्लाह कहेगा कि मैं दुनिया से दुगुना तुम्हें जगह अगर दे दूं तो तुम खुश हो जाओगे। वह बंदा कहेगा कि अल्लाह क्या मजाक कर रहे हैं, दुनिया के अंदर, दुनिया से भी बड़ी जन्नत के अंदर मुझे जगह देंगे, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसे एक महल अता करेगा, और वो महल उसके लिए इतना बड़ा होगा, वो देखकर सोचेगा कि इससे बड़ा किसी के पास नहीं है। अल्लाह उसकी इस अदा को देखकर मुस्कुराएगा। मेरे भाइयों, ये 14 अमाल थे जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराता है। तो हमें भी चाहिए कि इन अमाल को करें, और करने के बाद हमें ये खुशनसीबी हासिल हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हरकत को देखकर मुस्कुराए। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमने जितनी बातें सुनी हैं उस पर पहले मुझे और बकिया तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।